Nekchand builds a dreamland. Dadi, tell me a story. Little Nekchand begged, wrapping his arms around his grandmother. Come, my dearest. Dadi said, gently drawing Nek into the warm rajai. A long time ago, there lived a little boy who dreamed of becoming a mighty emperor. Now, you see, it wasn't at all easy for a village boy to become a king, let alone an emperor. But the boy was very brave. The story flowed late into the winter night as the soft glow from a lantern filled the room with magical shadows. As Nek floated into sleep, he dreamt of princes on flying horses, towers that kissed the skies, wise wizards, chatty birds, and singing angels. Next morning at sunrise, Nek and his friends ran to the rocks lining the lake shore. Charge, brave steeds! Shouted the boys. The rocks beneath them became their trusted horses, and the lake became their vast battlefield. Swinging sticks like swords at the tall grass around them, they cried, Take that, you cowards! Their heroic play went on till sunset. We must head home now, cried Nek, biting into the juicy guavas picked from the lakeside farms. Biji will be upset since we missed lunch. Nek tiptoed into the warm kitchen. His mother was already by the stove preparing dinner. I was helping Bapuji in the farms. Nek quickly said, hoping to trick his mother. But she knew better. Good boys don't tell tales, Nek. Go wash and present yourself in the kitchen right now, she said firmly. But when she ladled out ghee on the piping hot roti in his plate, her heart melted, just like the ghee. She knew how much Nek loved stories and reliving them. When I was a little girl, Biji began. Nek looked at her with a twinkle in his eyes. He immediately forgot the scolding. Biji chuckled and continued her tale. As Biji rolled out the rotis and cooked them on the hot chulha, she talked about her childhood from a faraway village. The games by the watering wells, the adventures in the forests by the river, the dances in the fields filled with mustard flowers and sugar canes. Nek pictured happy girls on long swings touching the sky, with their colorful dupattas fluttering like playful flags. He heard giggling children dancing with peacocks, singing with koels, and running through the large green fields, biting into freshly roasted corn flavored with tangy lemon and salt. After Nek finished eating, Biji gave him a large ball of dough. Nek shaped the dough into camels, cows, women with pots atop their heads, men in dhoti and pagdi, kings on elephants, queens in palanquins, musicians, dancers. He spent hours building his beautiful magical world as the rest of the family settled in for dinner around the warm stove. His cousins and brothers continued the stories. They spoke of majestic elephants that were white and golden, and of mythical birds with human bodies, lion feet, eagle wings, fish scales, and precious rubies in their eyes. As a young man, Nek moved to the large new city of Chandigarh. There, he found work as a road inspector. He watched as the modern city grew. Farmlands became buildings. Village paths became tarred roads. Forests became offices. Nek's heart ached for his village. He looked for a place where he could bring his dream world to life. Eventually, he found a forgotten forest on the edge of the growing city. There,
he began to secretly build his dreamland. Before starting his workday, Nake set out on long bicycle rides through the villages that were slowly disappearing. He collected pieces of broken pottery, colorful bangles, shiny beads, buttons, glasses, mirrors, and tiles from these villages. He hid this treasure in the forest. With time, Nake learned to work with concrete. He used concrete with the pieces from his treasure to build a fantastic world. He filled this world with the people and places from his dreams. Women in colorful clothes made from bangles, walking with pots balanced on their heads. Men working in their fields wearing dhotis made from beads and tiles. Boys playing happily in kurtas made from buttons and mirrors. Girls swirling in flowing skirts made of shiny pebbles. He built curving pathways, flowing streams, large palaces with balconies, windows, and open courtyards. He built a world where happiness lived forever. For 15 years, Nake worked secretly. Then people learned of this enchanted world. They came in large numbers. They walked in amazement through the unending pathways. They admired the cascading waterfalls. They peeked through jharokhas. They waved joyfully from balconies. They called happily through doors. When they saw the large swings hanging from splendid tall arches, they swung high into the sky. They laughed as they touched the sky again. They walked excitedly into forests filled with elephants, monkeys, tigers, and birds made beautifully from pieces of pottery. They played hide and seek, ate their picnic in gardens, shared stories, and laughed some more. Just like the village children in Nake's dreams. They called this magical world the Rock Garden. चलिए इसी प्यारी स्टोरी को अभी हिंदी में सुन लेते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेकचंद बिरसा ड्रीमलैंड। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बच्चा है, वो दादी को बोल रहा है कि दादी स्टोरी सुनाओ ना। वो नेकचंद है और दादी जो है वो दादी अपने उस बच्चे को पास में लेकर बोल कि हाँ हाँ क्यों नहीं प्यारे, ये बताती हूँ तुम्हें स्टोरी, लेकिन उसके पहले ये रजाई को ओढ़ लो। और वो रजाई को उसके ऊपर ओढ़ देती है और स्टोरी बताना शुरू कर देती है। बहुत दिनों पहले की बात है, एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे जैसे था और वो हमेशा सपना देखता था कि एक बहुत बड़ा का वो राजा बनेगा। अब तुम ही देख लो, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा राजा कैसे बन सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन वो बच्चा जो है ये बड़ा शूरवीर है, ये कुछ भी करके इसे बनना ही है। दादी माँ ये ऐसी स्टोरी बताने लग गई और वो ठंडी की एक रात थी और हवा चल रही थी। वहाँ पे लगा हुआ जो कैंडल है उसमें से मंद मंद थोड़ा सा अंधेरा और थोड़ा सा उजाला। तो नेकचंद अब सुनते सुनते वहीं पे सो गया था। उसने बहुत सारी प्रिंसेस की, हॉर्सेस की और जो टॉवर्स है वो हाइटेड वाले, सिंगिंग एंगल्स की, तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ दादी से सुनी थी। सूरज जैसे ही उग गया नेक्स्ट मॉर्निंग में, वैसे ही नेक अपने फ्रेंड के साथ नदी किनारे एक तालाब है वहाँ पे वो इकट्ठा हो गए। तालाब के किनारे जब ये बैठे थे, इनकी पूरी बातें चालू थी। इन्होंने एक रॉक पे बैठने के बाद अब हॉर्सेस को इमेजिन करना शुरू कर दिया था और वह अपने आप को अब युद्ध भूमि में खड़े पा रहे थे। वही जो लेक है वहीं पे अब उन्होंने वहाँ से कुछ स्टिक्स को ले लिया और वो स्टिक्स है उसे वो तलवार समझते थे और वो भागने लगे और बोले कि रुक जाओ, अगर तुम शूरवीर हो तो यहाँ पे आके हमारे साथ लड़ाई करो। और तभी वह एक दूसरे के साथ बातों बातों की लड़ाई करने लगे। नेक तभी बोला चलो घर चलते हैं, पर उसके पहले वहाँ पे जो जाम के पेड़ थे
वहाँ से उन्होंने जाम तोड़ दिए अमरूद के और वो अमरूद खाने लगे। याद आया कि अरे बाप रे, दोपहर का खाना तो खाया ही नहीं है। निक घर पे आया, उसकी माँ जो थी ये चूल्हे के पास बैठ के गरम रोटियां बना रही थी। उसने बताना शुरू किया, मम्मा मैं जो हूँ ना, मैं ना पापा के साथ फार्म पे था। उसने स्टोरी के जैसे बताना शुरू कर दिया, लेकिन सच्चाई उसे पता थी। उसने बोला, देखो छोटे बच्चे झूठी कहानियाँ नहीं सुनाते हैं, हाथ धो लो और यहाँ पे आके किचन में खाना खाने बैठ जाओ, मेरे सामने बैठ जाओ। अब उसने जो रोटी के ऊपर घी डाला और उसे पाइपिंग करके उस रोटी के उसको दिया। ऊपर जो गरमा गरम रोटी के ऊपर जो घी था वो मेल्ट हुआ। वैसे माँ का हार्ट था, उसे पता था और माँ को ये भी पता था कि नेक को स्टोरी बहुत पसंद है। उसने बताना शुरू कर दिया। जब एक छोटी लड़की थी तब की बात बता रही थी। बेटा जो है नेक, इसकी आंखों में चमक छा गई और वो अपनी माँ की तरफ देखने लगा। तभी माँ ने उसे डांटा था, वो ये भी भूल गया था और मम्मी जो थी वो कंटिन्यू अपनी स्टोरी बताने लग गई। तभी वह अपनी दोनों हाथों से रोटियां भी बेल रही थी, खाना भी बना रही थी गरम गरम चूल्हे पे और अपने छोटे बेटे के साथ अपना पूरा बचपन के किस्से कहानियाँ गाँव में जो उसने महसूस की थी, जो खेला था, वो सारी बता रही थी। तो एडवेंचरस स्टोरीज जो उसकी थी, नदी के किनारे की, जो मस्टर्ड के फ्लावर्स थे खेतों में, जो गन्ने का खेत था और वहाँ पे झूला टांगने के बाद जो लड़की झूले से खेलती थी, जब उसका झूला स्काई की तरफ जाता था हाइटेड लंबी सी प्लेस पे, तब उसे क्या लगता था, उसका कलरफुल दुपट्टा हवा में लहराता था। ये सारी चीज़ें, ये सब सुनने के बाद नेक जैसे कि उस लड़की की, उस पिकॉक की सारी कहानियों में दंग हो जाता था। वह भी रास्ते से ऐसे ही जाता था, रास्ते से गन्ने खेत में से जा रहा था और अपने हाथ में कॉर्न को लेके उसे अच्छे से फ्राई किया हुआ वो। अब माँ ने उसके हाथ में जो आटे का डो है वो उसके हाथ में दे दिया और कुछ भी इससे बना लो, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस। और तभी नेक ने उससे कैमल बनाया, गाय बनाई, बकरी बनाई, एलिफेंट बनाया, राजा बनाया, रानी बनाई और उनकी सेना बनाना शुरू किया, म्यूजिशियंस बनाना शुरू किया, डांसर्स बनाना शुरू कर दिया। घंटों तक वो उसकी पीछे था और तभी यहाँ पे फैमिली जो है डिनर के लिए बैठ चुकी थी। अब वो लोग मस्त से बातें करते करते डिनर कर रहे थे और स्टोरियाँ भी जोरों शोरों से चालू थी। अब वो मैजिकल जो एलिफेंट है जिसका कलर वाइट एंड गोल्डन है, उसके बारे में बोल रहे थे, जैसे कि मैथिकल बर्ड्स होते हैं, ह्यूमन बॉडीज होती, वो लॉयंस है, ईगल्स है, विंग्स है, फिश स्केल्स है और कुछ रूबीज जो हीरे जवाहरात होते हैं, वो उनके आँखों में वो चमक दिख रही थी। नेक जैसे जवान हो गया, चंडीगढ़ में एक बड़े से सिटी में आ गया। वो अब तक रोड इंस्पेक्टर बन चुका था और उसने देखा कि उसका जो सिटी है बड़ी ही मॉडर्न हो चुकी है। जहाँ पे पहले खेत हुआ करते थे वहाँ पे अब बड़ी बड़ी बंगले बन गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बन गई हैं। फॉरेस्ट जो है ये थोड़े से ही बचे हुए हैं। तभी वो मन में सोचने लगा कि विलेज कैसे होगा और वो यहाँ पे कैसे मिलेगा। यहाँ पे तो बड़े बड़े रोड्स हैं, ये तो पूरा मॉडर्न हो गया है। और तभी वह वो जगह देखने लगा जहाँ अपनी मन की तरंग वो अपना कुछ भी कर सकता था और वो बाइसिकल लेके उस जगह को ढूंढने निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसने बहुत सारा था, जैसे कि कांच की चूड़ियाँ, रिबन्स होते हैं, कुछ ग्लासेस होते हैं, कुछ फटी फुटी जो स्टाइल्स होती है वो सारी करना शुरू कर दिया और कंक्रीट में मिक्स करके वो कुछ ऐसा वर्क बनाना चाहता था जो वर्क फैंटास्टिक
उसके वर्ड में रख सके, जो लोगों को देख के आकर्षित कर सके, लोगों को उनके ड्रीम पूरे कर सके। ऐसे जो कभी उसने कलरफुल क्लॉथ में देखे थे, बैंगल्स को यूज़ करके उसने मैन विमेन बनाए। जो आदमी खेत में काम कर रहे थे उनकी धोती बनाने के लिए बेड्स और टाइल्स को यूज़ किया था। जो बॉयज़ खेलते हैं उनका कुत्ता बनाने के लिए बटन्स एंड मिरर्स को यूज़ किया था। और गर्ल जो है ये झूले पे झूमती हुई और ऐसी कुछ चीज़ें बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें, जैसे कि फ्लावर्स हैं, ऐसे जो बालकनीज़ होती हैं, जो वाटरफॉल होता है, पैलेसेस होता है, ये सारी चीज़ें उसे इस दुनिया में बना के लोगों को दिखानी थी। 15 साल तक नेक जो है सीक्रेटली ये काम कर रहा था, लोगों को कुछ भी पता नहीं था। बाद में लोग जैसे जैसे वहाँ से देखने के लिए आते थे, लोग हक्का बक्का रह जाते थे जब लोग इसकी इस अद्भुत कला को देखते थे। यहाँ से आप आसानी से बाहर का नज़ारा देख सकते हो। ये देखिए कितना लंबा सा यहाँ पे झूला टांगा हुआ है, जिसका एक बार झूलोगे तो जैसे कि आप स्काई को पकड़ रहे ऐसे लगेगा। ये देखिए एलिफेंट है, जंगल में आए जैसे लगता था, पीकॉक है, मंकीज़ है, और ये सारी पॉटर्स बनाई हुई चीज़ें हैं। यहाँ पे यूज़फुल तो नहीं है, लेकिन अनयूज़फुल थिंग्स से यूज़फुल थिंग्स बनाई गई है। तो पिकनिक में लोग घूमने गार्डन में, और इसे लोगों ने द रॉक गार्डन नाम दे दिया था। यहाँ पे बच्चे खेलने आते थे, मज़ा करने आते थे, अपनी स्टोरी सुनाने आते थे। और ये नेक का प्यारा सा गार्डन जिसे रॉक गार्डन बोला जाता है। ये नेक चंद की स्टोरी आपने पूरी सुन ली है। इस वीडियो को कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।